So in the last lectures, I discussed regarding the ADC MP 3304. So in this topic, you have to study interfacing concepts for SPI based ADC DAC. So already you have studied ADC DAC and already you have studied SPI port. So with the help of these two, you have to connect the devices. How can you connect microcontroller with SPI based ADC DAC? मतलब ADC और माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करनी है, लेकिन किसके थ्रू करनी है? SPI के थ्रू, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू. Okay, so basics in SPI protocols, there are 4 pins required. Okay, so these 4 pins you have to connect with the ADC, and also these 4 pins you have to connect with the microcontrollers. So now listen that in this with most microcontroller SPI ports, it is required to send groups of 8 bits. Already I discussed in SPI communication protocol, you can send group of bits, group of datas. So that groups is generally is of 8 bits. मतलब क्या होगा? 8 bits का ग्रुप, दूसरा ग्रुप 8 bit का, तीसरा ग्रुप 8 bit का, इस टाइप से. तो 3-4 ग्रुप्स को हम क्या करते हैं? एक साथ भेजते हैं. लेकिन I2C में क्या होगा कि हम एक एक ग्रुप को भेजते हैं. एक बार 8 बिट डेटा भेजा, उसके बाद दूसरा बिट भेजने के लिए हमें दूसरी क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है. सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द माइक्रो कंट्रोलर एसपीआई पोर्ट टू कॉन्फ़िगर टू क्लॉक आउट डेटा ऑन फॉलिंग एज एंड ऑफ क्लॉक एंड लैच डेटा इन द राइजिंग एज. आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्लॉक्स, okay, so what will happen? See, at the falling edge, clock will be out. It means that data will be out. And in the rising edge, you can provide the data to the device. That's why it is written, it is latch the data in on the rising edge and at the falling edge, clock out the data. मतलब क्या होगा? सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो राइजिंग एज में क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होगा, वो डेटा लैच करेगा एडी कन्वर्टर के लिए. फॉलिंग एज में क्या होगा? डेटा जो होगा हमारा एडीसी और डीएसी कन्वर्टर से बाहर आएगा. ठीक है, तो मतलब एक हो गया माइक्रो प्रोसेसर से एडीसी तक पहुंचना, दूसरा हो गया एडीसी से माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचना. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज. सो बिकॉज कम्युनिकेशन विद MCP 3304, devices may not need multiple of 8 clocks. It will necessary to provide more clocks than are required. See, what will happen when you are connecting any devices, उसमें हम क्या करते हैं कि मोर देन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा क्लॉक भेजते हैं. इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि डेटा कहीं पे इंटरप्शंस नहीं होगा. अगर मान लो कि 8 बिट हमें डेटा भेजनी है और 8 क्लॉक ही हम सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इट मे बी की प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, कोई एक क्लॉक इधर उधर होगा तो क्या होगा? डेटा छूट जाएगा या डेटा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्लॉक्स तो हम प्रोवाइड करते हैं. जनरली क्या होता है, कोई भी सिस्टम में, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स में क्लॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं हमेशा. जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी डेटा फेच करेगा, जब भी डेटा को रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी रीड करेगा, राइट करने की रिक्वायरमेंट होगी राइट करेगा. ओके, दिस इज यूजुअली डन बाय सेंडिंग लीडिंग जीरोस. तो हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले जब कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के बाद हम जीरो पहले सेंड करते हैं. जब हम 3-4-5 बिट जीरो सेंड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट बिट करते हैं, मतलब उसके बाद कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं. Okay, so I will discuss in the diagrams. Before that, you have to know if you are connecting ADC or DAC with microcontroller with the help of SPI communication protocol, you need 2 modes. One mode is called mode 00. Mode 00.
and another is called mode 11. So later I will see what is the difference between mode 00 and mode 11. Actually the difference is the clock signals, rising edge or falling edge. Okay, let us see in that. Now you have to understand this diagrams carefully. So in these sections I am talking about mode 00. Mode 00, it means that S clock ideals low. So if S clock ideals low, what will happen? Okay. Now you can see in the first line, this is the CS, chip select pins. With the help of these pins, you can activate the devices like ADC or DAC in this case. Okay. So the next is the serial clock. So we are providing the serial clock in the group of eight clocks. Like you can see, in the first group I sent 8 clocks. Again, second I sent 8 clocks. Again, I third sent 8 clocks. So it means in a group you can send the clocks. Okay. After 8 clocks, you have required some gap. So this is the first case. So now if first byte transmitted to the AD converter contains 6 leading 0 before the start bit. Now you can see in the diagram, this is the serial clock or this is the D in. This is the data input which is provided to the ADC or DAC. So now when data will start, when the data is transmitted after 6 leading zeros. Now you can see 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros. So from this the data will start. See that D0, D1, D2. Sorry. So this is the data D2, D1, D0. So this will start after 6 leading zeros. Okay. So this is the data inline. So now सर भी कर सकते हैं. Yes, बोलो. जैसे से स्टार्ट करना है या फिर हाँ वो कर सकते हैं सर. स्टार्ट कैसे कर सकते हैं मतलब जैसे कि ये 500 से स्टार्ट हो रहा है. हाँ एक्चुअली क्या है ना, देखो यहाँ भी ये लाइंस जो है ये करस्पॉन्डिंग लाइंस ये शो कर रहा है. ठीक है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है. जैसे देखो मैंने क्या बोला कि पहले 0 हम प्रोवाइड करते हैं. एक्चुअली 0 प्रोवाइड करने से होता क्या है कि अगर हम 0 फेड करते हैं तो एक होता है कि जैसे मान लो तुमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन कनेक्ट करने के बाद चैनल एस्टैब्लिश्ड हुआ या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा. बात समझ रहे हो. चलो मैंने अगर मान लो कि मैंने कनेक्ट कर दिया और डेटा सेंड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हमें पता नहीं है कि डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है. बात समझ में आ रही. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 फेड करते हैं. 0 फेड करने से क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि लाइंस इज क्लियर और नॉट. जैसे ही आपको पता चल जाएगा उसके बाद हम बिट स्टार्ट करेंगे. जनरली क्या होता है कि 6 बिट 6 0 भेजने के बाद ही हम बिट इसमें स्टार्ट करते हैं. ये ऑलरेडी सेटअप्ड है जो इसकी आर्किटेक्चर है उसमें. ठीक है. ओके. तो जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम डेटा सेंड करेंगे. तो दैट डेटा विल बी डिपिक्टेड लाइक दैट D1, D2, D1, D0. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है उसको हम पहले सेंड करते हैं. रिमेंबर दैट. ओके. सो जितना भी डेटा होगा हम डेटा में सेंड कर देंगे. आफ्टर सेंडिंग द डेटा this line is going into the don't care conditions. क्योंकि एक बार इनपुट सेंड करने के बाद अब क्या करेगा, एडीसी प्रोसेस करेगा. करेक्ट. जैसे देखो क्या है, D2, D1, D0 मैंने सेंड कर दिया, उसके बाद डेटा प्रोसेस कर रहा है. तो डेटा प्रोसेस करने के समय इनपुट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है टेकन द इनपुट. ओके फाइन. नाउ यू कैन कम टू द आउटपुट पिंस, डी आउट पिंस. तो डी आउट क्या करेगा, अब देख लो कि
जब तक हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं एडीसी और डीओसी के, तब तक तो आउटपुट नहीं देगा वो। फाइन। तो जब तक आउटपुट नहीं देगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस लाइन को हम हाई इंपेडेंस स्टेट्स में कनेक्टेड रहता है, ताकि हम आउटपुट इसकी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू दिस। ओके। अब दो चीज देखना है, जब आउटपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट मैंने प्रोवाइड कर रहा है, जब यहां से आउटपुट प्रोवाइड करेंगे तो जब भी आउटपुट आएगा वो नल बिट और साइन बिट के बाद आता है। देयर आर 2 बिट्स कमिंग। जैसे मान लो जब हम डेटा इन करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट बिट रिक्वायरमेंट होती है, सेम तरीके से जब आउटपुट देंगे उसके पहले नल बिट और साइन बिट दिया जाता है। ठीक है, तो साइन बिट क्या करता है, साइन बिट इज ए क्लॉक्ड आउट ऑफ AD कन्वर्टर ऑन द फॉलोइंग एज ऑफ क्लॉक नंबर 11 फॉलोड बाई रिमेनिंग डाटा। अब क्या होगा कि ये जो साइन बिट और नल बिट है जब हम प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस्ड डेटा जो कन्वर्टर के पास है वो रेडी है, यू कैन एक्सेस द डेटा। नाउ यू कैन सी दैट अप टू दिस पार्ट, ठीक है, 8 बिट A और यहां तक, ये तक क्या है कि ये इसको पता नहीं है कि आउटपुट में क्या है, क्योंकि एट दैट टाइम आउटपुट इन हाई इंपेडेंस स्टेट, तो हाई इंपेडेंस स्टेट में हम आउटपुट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, आफ्टर इनपुट you are sending the null bit and sign bit. It means that after sending the null bit and sign bit, the output is ready for the device. अब आउटपुट जब रेडी होगा तो क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा वो तुम्हारा आउटपुट हम देंगे थ्रू आउटपुट लाइंस, जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि ये इनपुट कब करेगा और आउटपुट कब करेगा। ओके, तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां देखो, मैं इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। हाँ, now you can see that in the clock there are 2 lines. You can see this is rising edge, 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 this is rising edge. Okay, so the upper part is showing that rising edge and the lower part is showing that falling edge. Okay, so पहले मैंने कहा कि जब भी डेटा इन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, राइजिंग एज पे डेटा इन करेगा और फॉलिंग एज पे डेटा आउट करेगा। तो यू कैन सी दैट हमने क्या किया है, 6th बिट से डेटा देना शुरू किया है, तो ये क्या हुआ, D2, D1, D0। ओके, सो इन एवरी राइजिंग एज यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा। ठीक है, लेकिन जब तक डेटा था इट्स फाइन। अगर मान लो कि और भी डेटा होता तब हम क्या करते, इसकी राइजिंग एज पे डेटा कंसीडर करता। अब जैसे ही ये खत्म होगा, डाटा इज क्लॉक्ड आउट ऑफ एडी कन्वर्टर ऑन फॉलिंग एज। अब क्या होगा, जैसे ही फॉलिंग एज आएगा, मतलब इनपुट लेने के बाद, एनी हाउ द एडीसी और डीएसी विल डू द जॉब आफ्टर गेटिंग द इनपुट। तो जब उसको इनपुट मिल जाएगा उसके बाद से क्या करेगा, फॉलिंग एज पे उसका आउटपुट स्टार्ट होता है। लेकिन आउटपुट स्टार्ट कैसे होता है, पहले नल बिट, उसके बाद साइन बिट, उसके बाद आउटपुट। ठीक है, ये जनरली जो होता है तुम्हारा क्लॉक नंबर 11 से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दैट। देखो 10 क्लॉक्स में है, फॉलिंग एज पे नल बिट आएगा। ठीक है, 11 क्लॉक्स के फॉलिंग एज पे साइन बिट आएगा। उसके बाद क्या होता है, डेटा स्टार्ट होता है। ये रूल्स है, इसके सेट ऑफ रूल्स है, जैसे उसको बनाया गया है। ठीक है, इस पे डेटा स्टार्ट होता है। अब क्या है कि डेटा हम सेंड कब करेंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ कि मैंने पहला ग्रुप ऑफ 8 क्लॉक सेंड किया, दूसरा क्लॉक 8 सेंड किया। तो कोशिश ये होता है कि सेकंड क्लॉक्स में होगा, सेकंड 8 क्लॉक्स में हम डेटा सेंड करेंगे डिवाइस को। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 8 बिट डेटा हम सेंड करना है तो इट इज सफिशिएंट फॉर दैट। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम डेटा सेंड करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स बफर है, वो 2 अननोन बिट रिसीव करता है। अननोन बिट कौन सी है, एक तो नल बिट है और दूसरा साइन बिट है, नल बिट एंड साइन बिट।
ये 2 बिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। देन जब 2 बिट एक्सेप्ट कर गया तो बाकी देखो 8 क्लॉक्स होगा तो हमें 8 बिट आना चाहिए, ठीक है। तो 8 बिट में क्या हुआ, पहला तो नल बिट हो गया, दूसरा साइड बिट हो गया, 2 बिट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है 2 बिट लेट से, 9 10 छोड़ दिया, 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11 से स्टार्ट हो रहा है तो 11 तो ये हो गया, 12 ये हो गया, मतलब 2 इधर छूट गया, 2 इधर छूट गया, 4 हो गए। और 1 बिट में हमारे पास 4 बचा, वो 4 बिट यहाँ पे क्या होगा, आउट आएगा। तो 4 बिट जो आउट आएगा वो क्या आएगा, एमएसबी बिट आएगा, ठीक है। उसके बाद की जो क्लॉक्स होंगी उसमें क्या आएगा, बाकी 8 बिट आएगा। ओके, तो जैसे ही ये थर्ड क्लॉक आउट आएगा, थर्ड जो 8 बिट का क्लॉक्स है, उसके बाद क्या करेगा, जो रिसीवर्स होगा वो रिसीव करेगा कन्वर्सन रिजल्ट, जो भी सिस्टम का जो भी एडीसी और डीएसी का कन्वर्सन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेंड करेगा, ठीक है। तो देखो ये लाइंस जो इंडिकेट कर रहा है, दिस लाइन इंडिकेटिंग दैट एमसीयू ट्रांसमिटिंग डेटा, ये डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन रिसीव को आफ्टर प्रोसेसिंग कौन सी डेटा रिसीव कर रहे हैं, ये डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम नहीं, कौन सी रिसीव कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर्स। सो माइक्रो कंट्रोलर गिविंग द डेटा for converting the data, and after conversions again get back to the data to the microprocessor unit. Okay, understand? Yes sir. Now you can see I already told you mode 00. So mode 00 का मतलब क्या हुआ, जो clock starting clock होगा it will start from 0. Remember that. In mode 1 Yes. what will happen, it will start from the clock high. Okay, so whatever I told you, this is in this slide, this is a description of that. जो मैंने आपको बोला है वही इसमें लिखा हुआ है, जस्ट इट क्या है, in above figure first byte transmitted to the AD converter contains 6 leading 0 before the start bit, ठीक है। स्टार्ट बिट के पहले 6 leading 0 होना चाहिए। After that arranging the leading 0 this way produces the 13 bit data bit to fall in position easily manipulated by MCU. उसके बाद क्या करते हैं, 6 बिट ये हो गया और उसके बाद स्टार्ट बिट, ठीक है, और उसके बाद डेटा। तो ये सारे को मिला के 13 बिट डेटा हो जाता है, वो एक बार प्रोसेस करता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉक आउट, द साइन बिट इज क्लॉक्ड आउट ऑफ द एडी कन्वर्टर एंड द फॉलोइंग एज ऑफ क्लॉक नंबर 11। तो 11 क्लॉक नंबर से हम क्या करेंगे, डेटा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। कब तक डेटा आएगा, बाय फॉलोइंग बाय द रिमेनिंग डेटा बिट्स, ठीक है। तो उसके बाद साइन बिट, हाँ उसके बाद नल बिट, फिर साइन बिट, उसके बाद क्या होगा, बाकी डेटा। लेकिन जो भी डेटा हम कंसीडर करेंगे वो एमएसबी फर्स्ट, रिमेंबर है, ठीक है। हम यहाँ करते हैं एमएसबी फर्स्ट से हम क्या करते हैं, डेटा रीड करना शुरू करते हैं। आफ्टर द सेकंड 8 क्लॉक्स हैव बीन सेंट टू द डिवाइस, ठीक है। तो सेकंड क्लॉक के बाद हम क्या करते हैं, डेटा हम सेंड करते हैं टू द माइक्रोकंट्रोलर यूनिट। सो इन दिस वे द एमसीयू रिसीव्स बफर विल कंटेन 2 अननोन बिट्स, दैट इज null bit and sign bit and the 4 highest order bits of the conversion. So after third byte has been sent to the device, the receiver register will contain the lowest order 8 bits of the conversion result, ठीक है। तो in this way you can transfer the data to microcontroller unit to the converter and from the converter to the microcontroller unit. Now see this is the same diagram, just I will reverse that. It is a mode 11. Okay, so mode 11 what will happen, here you are starting from the clock is starting from the high level, means 1. Okay, rest of all the things are same, there is even no single byte will change. सो याद करना आसान है, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द सेम थिंग्स, जस्ट वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द
highest clocks 1 to 0, and then in this case you can see, so in this case MCU latches the data from AD converter on rising edge of his clock, and data is clock output the converter on falling edge. यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ फॉलिंग एज पे होगा, वहां राइजिंग एज पे होगा, ठीक है, सारी चीज सेम है, डी इन डी आउट, ऑल द थिंग्स आर सेम, दिस रजिस्टर इज आल्सो हैविंग सेम वैल्यू. So you can, if you understand first one, it is easily to understand the second one. So just the difference is it will work out an SPI mode 11, okay, which requires the clocks ideal in the highest edge. As with mode 00, the AD converter outputs data on the falling edge of the clock, and MCU latches data from the AD converter and on the rising edge of the clock.